dear friend, welcome to SpeakNowEnglish.com. Once again, today is the one of the best moment for you to become a speaker of English. Always you are thinking to become a native speaker of English. But to become a native speaker of English in your mother tongue, how you can create your English speaking through your mother tongue. Now just try to understand, as you are speaking your mother tongue, as you are speaking your मातृभाषा, जैसे आप मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, जितनी भी सारी भाषाएं हैं, जो भी भाषाएं आप बोलते हो उसके थ्रू भी आप इंग्लिश बोल सकते हो. मीन्स वी हैव 22 लैंग्वेजेस अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं और जो भी आपकी मातृभाषा है उसके थ्रू आप इंग्लिश सीख सकते हैं. इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है. हमें ये बचपन से ये हमारे ऊपर में थोप दिया गया है कि हमारे लिए इंग्लिश सीखना टफ हो सकता है. ये टफ कब होता है? अगर हमारे स्टडीज के साथ ये जुड़ा नहीं होता है. हम जब कभी भी पढ़ाई करते हैं, चाहे अर्लियर डेज में ऐसा था कि अगर कोई अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करता है तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता था वो 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता था. बट देयर आर सो मेनी स्टेट्स गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ गिवन इन द करिकुलम फ्रॉम द 1st स्टैंडर्ड एज इंग्लिश also one of the subject. So from the 1st standard to till your 10th standard you are getting your English. So always you are very related to the English. Now question ये है कि अगर आप इंग्लिश का एक सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं और इंग्लिश में आपको बात करना है, ये दोनों चीज बहुत ही अलग है. किसी भाषा को पढ़ लेना और किसी भी भाषा में बात करना, बोथ आर टोटली डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू वन ऑफ द बेस्ट live example for you. As you are studying your other subject apart from English, like as you study Sanskrit, Marathi, Telugu, Tamil, Punjabi. Now there are so many schools who give in the English medium French, Spanish, Germany. There are some certain schools who provides Hindi. You should have a Hindi even in the English medium. You should have your regional languages. If you study in Maharashtra, even in the English medium, you will have to keep the Marathi subject in your curriculum. You will have to study one subject. Now I can tell you one of the best example, friend. The student, those who are not a speaker of Marathi, those who are not getting their mother tongue as a Marathi, the family who don't go through the Marathi communication, for their children it's very tough to complete the subject of Marathi. Even I have seen myself the student who studies English medium and they take the tuition for the Marathi subject, because to study Marathi and to speak Marathi both are different. तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि कम से कम आप अपना एक मदर टंग में तो बात कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप हिंदी भी बोलते हो. ये एक एडिशनल एडवांटेज है. अब ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमारे लाइफ में हमेशा से रहा है, इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं. क्यों ऐसा होता है? और ये बहुत बिगनिंग से है. फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बचपन से आप कहते आ रहे हो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं. इसका एक ही सॉल्यूशन है. टेक डिसीजन टुडे. टेक द डिसीजन ऑफ टुडे योरसेल्फ. यू विल बिकम अ स्पीकर ऑफ इंग्लिश. The decision makes difference. The moment you will take a commitment, the moment you will determine yourself, from today I want to become a speaker of English, the same time you will start your journey. The journey starts from your thought. The journey starts of spoken English from your mind. Now, just feel it as you do your meditation. The purpose of meditation is very simple. जो मेडिटेशंस आपके हार्ट, बॉडी और सोल को आराम पहुंचाता है, उसे हम मेडिटेशन कहते हैं. अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और उसके टाइम में बहुत ही विचलित हो और मेडिटेशन करते करते आप बहुत विचलित हो, फिर भी आप मेडिटेशंस का जो बेनिफिट्स है वो नहीं ले पाएंगे.
क्योंकि ये हमेशा से आपके मन में चलता रहेगा कि हमारे लाइफ में जो चीज मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला है। आप कहीं अगर जॉब करने जाओगे तो आपके मन में हमेशा ये चलता रहता है, अरे मैं तो इंग्लिश में बात नहीं कर पाता हूं। आपके पास अगर आप किसी भी फील्ड में हो और एक इंग्लिश स्पीकर मिल जाता है, आप सब कुछ सुन लेते हो और आपका एक जवाब होता है, मैं समझता तो हूं बोलता नहीं। ये प्रोकास्टिनेशन है। दिस इज कॉल्ड द प्रोकास्टिनेशंस, बिकॉज यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग योरसेल्फ कि मैं समझता हूं मैं बोलता नहीं। ये ऐसा नहीं होता है। समझना और बोलना बोथ आर डिफरेंट। आपको बोलना है तो मीन्स आपको बोलना है। अगर कोई आपको कहता है कि आपको साइकिल चलाने आता है और आप कहते हो हाँ मुझे तो साइकिल चलाने आता है, और आपको सामने से आदमी कहता है कि आप ये ले साइकिल चलाओ, आप बोलते हो नहीं आज नहीं बताऊंगा 3 दिन के बाद बताऊंगा, तो आप भी इंग्लिश के साथ ऐसे ही कर रहे हो। मीन्स आप उसको कह रहे हो कि मैं इंग्लिश तो समझता हूं बोलता नहीं हूं लेकिन मैं बोल सकता हूं, बट ऐसा नहीं होता है। If I'm speaking Hindi, if I'm speaking English, means I'm speaking. There's no any certificate required on your head that you are speaking English. If you are speaking English, just speak from your mouth. One thing, remember it. If you want to become a fluent speaker of English, only your mother tongue can allow you. Only your mouth translation can allow you. Your mother tongue should be translated in that manner that you should not feel that you are translating the communication of English. Because whenever you will speak and if you will thought of your mind and if you will not able to translate instantly from your tongue, you would not able to speak it. हम बोलते क्यों नहीं, इसका सिंपल उदाहरण है, सिंपल एग्जांपल है कि हमारे टंग को वो प्रैक्टिस नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूं, अगर आपको मैं बोलूं एक संस्कृत का श्लोक बोलने के लिए, आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर वही श्लोक ऐसा है जो आप बचपन से बोलते आए, आप बोल देते हो, बिकॉज आपके टंग के साथ वो ट्विस्ट हो गया है। जैसे अभी हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, हमें बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये हम बोलते आए हैं तो हमारे टंग के साथ फिट है तो हम बोल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्र है जो हम सुनते आए हैं, बोल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गायत्री मंत्र हैं उनको याद है, बोल लेते हैं, बट वो भी संस्कृत में है। इसी तरह से जो दूसरी लैंग्वेजेस है वो आपके टंग के साथ फिट नहीं है। अगर मैं अभी सोचूं कि मुझे बंगाली बोलना है, मुझे तेलुगु बोलना है, मुझे तमिल बोलना है, सोचने से नहीं होगा, समझने से नहीं होगा। योर टंग शुड गेट द प्रैक्टिस। इफ आई वांट टू बिकम ए स्पीकर ऑफ इंग्लिश, my tongue should be twisted. If I want to become a speaker of Marathi, my tongue should be twisted in the Marathi language. If I want to become a speaker of Gujarati, my tongue should be twisted in the Gujarati language. Similarly, हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाने का तरीका प्योर प्रैक्टिकल है। It's one of the unique, creative and practical method of speaking of English. Means ये मेथड के द्वारा आपको बिल्कुल ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको भाषा को याद करने की जरूरत नहीं है। मीन्स द मोमेंट वेर एवर यू विल गो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन स्पीक योर कम्युनिकेशन, यू कैन फ्रेम योर कम्युनिकेशन, बिकॉज नाउ योर टंग हैज बीन ट्विस्टेड थ्रू द हेल्प ऑफ एम, इज, आर, was, were, shall be, will be, has, have, had, shall have, will have. So there are so many things is there that you need to do the twisting. Now एक चीज तो मैंने आपको बहुत ही 100% कंफर्म कर दिया है फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे माइंड को ये बचपन से ट्रेन कर दिया गया कि हमें ग्रामर नहीं आता है, हमें ग्रामर नहीं आता। रियली ग्रामर इज द फास्ट। ग्रामर अगर आप पढ़ोगे तो आप बचपन से लेके जब तक पढ़ाई करोगे तब तक ग्रामर आपको मिलेगा। आपके 6th में था, 7th में था, 8th में था, 9th में था, 10th में है, 11th में, 12th में, ग्रामर पढ़ते जाओ। बट ग्रामर पढ़ना और इंग्लिश भाषा बोलना बोथ आर डिफरेंट। इंग्लिश भाषा बोलने के लिए आपको जो मैंने 7 चैप्टर 7 एक्सरसाइज बताई है वो काफी है। आपको समझना है, जैसे आप अगर कभी जिम ट्रेनिंग में गए हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज का अर्थ होता है, इसका प्रॉपर मीनिंग होता है एक्सरसाइज स्टार्ट्स विथ एवरीडे। ई से एक्सरसाइज स्टार्ट होता है और ई से एवरीडे स्टार्ट होता है। जब आप एवरीडे वो चीज का एक्सरसाइज करते हो तो ऑटोमेटिक आप उससे आप यूज टू हो जाते हो। अब डिपेंड करता है किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हो। ऐसा नहीं कि आप जिम में पहले दिन जाएंगे और आपका बाइसेप्स बन जाएगा। टू मेक योर बाइसेप्स यू विल हैव टू डू द प्रॉपर वे ऑफ एक्सरसाइज।
You will have to do the proper, you know, training. You will have to train yourself that how to develop your body. Similarly, this exercise starts with your everyday thought. एवरी डे आपको एक थॉट रखना है कि मेरे लाइफ में जो ये 24 घंटा मिलता है और जिसके लिए मैं इतने सालों सालों से परेशान हूं, वो 24 घंटे में से आपको 24 मिनट देना है, सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट देना है। मीन्स एक घंटे से आपको 1 मिनट निकालना है अपने लिए। आउट ऑफ 60 मिनट्स यू गिव फॉर योर सेल्फ 1 मिनट। दैट 1 मिनट विल गिव यू आउट ऑफ 24 आवर्स 24 मिनट्स। और अगर आज से आपने 24 मिनट्स अपने लिए दे दिया तो अगले 7 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व है। अगले 2 वीक्स में तो आप स्पीकर बन जाएंगे। हमारा जो कोर्स करिकुलम है, वो पहला जो कोर्स है वो 3 मंथ्स का है, 90 डेज का। हमने 90 डेज का कोर्स करिकुलम इसके लिए रखा है बिकॉज एक 90 डेज स्पेस ऑफ टाइम है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ऑनलाइन सिस्टम है। नाउ इट्स अ प्योर, वी आर विद द प्योर पेंडेमिक, so there is no any offline classes going on. Every class is conducted by the online. The moment I can tell you, you decide yourself कि मुझे आज से इंग्लिश बोलना है, आप बोलना चालू कर देंगे। सिर्फ इसके लिए एक डिटर्मिनेशन है। हमारे ऑनलाइन सिस्टम में हर एक चीज दिया गया है। आपको नोट्स मिलेगा जिसको हम वर्कशॉप स्पोकन इंग्लिश मैनुअल बुक कहते हैं। ये मैनुअल बुक ऐसी है जो आपको जिस तरह से साइकिल कैसे चलाना है, स्विमिंग कैसे सीखनी है, हारमोनियम हम कैसे बजाते हैं, तबला कैसे बजाते हैं, सिमिलरली यू विल एबल टू गेट अ मैनुअल थिंग्स विद इन यू। नाउ द मोमेंट यू विल लर्न इट, यू विल नेवर फॉरगेट इट। लोग ये भी कहते हैं कि बहुत दिनों से इंग्लिश बोलता नहीं हूं, इसके लिए इंग्लिश बंद हो गई। ऐसा नहीं होता। क्या आप हिंदी भूल सकते हैं? क्या आप अपनी मातृभाषा भूल सकते? नहीं। आपने जो इंग्लिश सीखी वो पूरी 100% नहीं सीखी। क्या आप साइकिल बचपन में चलाए और अभी भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। तो इंग्लिश भी सीखने के बाद आप भूलोगे नहीं। ये स्पीक नाउ इंग्लिश का स्लोगन है, नेवर फॉरगेट इन लाइफ। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इसकी जो एक तरीका है बहुत ही क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल है, जो याद तो बिल्कुल नहीं कराया जाता। हमने जितने भी सारी आपको एक्सरसाइज दी है वो प्योर मेडिटेशनल दिया है, प्योर क्रिएटिव दिया है, प्योर प्रैक्टिकल दिया है। बिलीव विद इन योर सेल्फ। द मोमेंट यू विल डू दिस, यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश. So I wish you all the best to become a speaker of English. God bless you. Thank you very much.